जी, सो व्हाट डिड वी डू येस्टरडे? कल हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था. सो व्हाट डिड यू रीड इन दैट? क्या कल समझ आई? कल समझ आई कुछ की समझ आई? हाँ जी. How to communicate properly and about the barriers which barriers come. Good, very good. Now you will see what is oral communication. ठीक है, oral communication सब तो पहली गल है. what is oral communication? वो सब कुछ जो हम बोल रहे हैं, whatever you all are talking is oral communication, right? Now there is something known as two sides of effective communication. बच्चे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. Try to occupy all the seats. वहाँ पे हो जाओ आप, चलो उधर हो जाओ. हाँ जी बच्चे, आप आगे हो जाओ, इधर आप बैठो, sit down. Try to occupy all the seats possible. हाँ जी, sit down. So oral communication में first thing is listening. So what is listening? सबसे पहली बात है, listening का मतलब होता है सुनना. ठीक है? For listening you have to become a very good listener. So what is a good listener? Keep your hand away from your mouth. Keep your hand down. ठीक है? So they are saying that one out of the 4 communication skills, reading, writing, speaking and listening, the most crucial is listening. Why? Because when you are listening, it is directly related to your brain. तो हार्डी listening skills ਜਿਹੜੀ ਨੇ, that is directly related to your brain. If you are listening carefully, that means you are understanding it. अगर कोई कुछ बोल रहा है और आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप सुन नहीं रहे हो, सो इट विल बी कि आपका ध्यान बढ़ रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे भी उस चीज़ का असर होता है. ठीक है? द लिसनिंग इज द मोस्ट. ड्राइवर्स फेल टू लिसन केयरफुली टू डायरेक्शंस गिवन बाय ट्रैफिक पुलिसमैन एंड रोड साइड पीपल एंड लूज देयर वे. वर्कर्स फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली इफ दे हैव नॉट लिसन टू द सुपरवाइजर. सो whenever suppose traffic policeman is saying something, ड्राइवर्स हेडफोन लगा के जा रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होता है? they are not listening to the instructions properly, problem में आते हैं. Same way, whenever you are working and if you are not listening effectively to what all is being said, so then you also get into the. Students are denied credit for assignments if they have completed the task as instructed. Sometimes the consequences of bad listening are insignificant, other times they are now most of the thing is, अगर if you are a bad listener, if you do not listen carefully, सबसे पहली बात है, जो आपको कुछ समझा रहा है, he will not be interested to tell you again. Secondly, आपको खुद को समझ नहीं आएगी, and if you ask again, that means कि पहले आपका ध्यान नहीं है, right? Now, the study of communication preferences, the first line managers and supervisors have found that listening is perceived as the most important communication skill. Listening cannot be ignored. Performing effectively cannot be ignored in performing efficiently. Based on the survey of covering 1 million workers, it appears that companies which encourage upward communication and listen to their employees perform better than companies. Okay, सबसे पहली बात ये होती है कि if a company who has employed you, ठीक है, अगर वो भी आपकी बात ध्यान से सुने, if they are listening to what you are saying, then only they will be able to perform in a better way. और सबसे बड़ी बात है, if you are also a good worker, ठीक है, if you are given a set of instructions और आप उस set of instructions के को follow ना करो, then what will happen? You will be in trouble. क्योंकि every company, suppose you are working in a big firm, टाटा, इन्फोसिस, IBM, रिलायंस, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको बिठा के सिखाएगा नहीं. ठीक है? They will be only giving you set of instructions for the first and last time, and they would be wanting you to perform accordingly, right? They will not be giving you instructions over and over again. तभी मैंने बोला कि आपको कोई बिठा के समझाएगा नहीं.
ठीक है. सो इफ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, अगर आप इफेक्टिवली नहीं सुन रहे हो, अटेंटिवली नहीं सुन रहे हो, अटेंटिवली क्या होता है? With full concentration. हाँ, फुल कंसंट्रेशन, ध्यान लगा के सुनना. इफ यू आर नॉट अटेंटिव एंड इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर एंड यू आर नॉट लिसनिंग प्रिसाइसली, तो क्या होगा? यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज समटाइम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर ओनली गिवन वंस. और उसके अलावा अगर सपोज करो आपकी कोई जैसे कंप्यूटर के है कोई बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल सिस्टम, उस टाइप की चीज़ों में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कोड लैंग्वेज का काम हो और वो कोड एक बार रिफ्लेक्ट होना हो, तो क्या होगा? ध्यान नहीं था. ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक दोज एक्सक्यूजेस, फिर वो आपकी एक्सक्यूज भी नहीं सुनेंगे. उसके अलावा व्हाट इज अ कॉम्पिटेंस इन अ कम्युनिकेटर? व्हाट इज कॉम्पिटेंस? हाँ जी, while listening to the individuals speaking, जब आपके कोई सपोज करो यू आर वर्किंग इन अ प्लेस और आपको बोलने का आपका काम है, ठीक है, हाउ कॉम्पिटेंट यू आर इन स्पीकिंग, आप बोलने में कितनी आपकी कॉम्पिटेंस है, जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी बात को किस तरह से सुनती है, वो भी मायने रखता है, राइट. उसके अलावा व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्लेस, जब आप काम कर रहे हो, और इवन यू आर स्टडिंग, और आपका अगर ध्यान, इफ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, यू विल बी एबल टू मिस आउट मेजर थिंग्स. मेजर थिंग्स पे ज़्यादा होता है और फिर माइनर चीज़ों का ढूंढते हैं. ठीक है. एम्प्लॉयज आर बिकमिंग increasingly aware that listening relates to almost all form of business communication. It is essential skill in gathering information for running every activity of a business. It also important in working in small groups, in interviewing a management tool, or to get a job. In communicating effectively across cultures, executives have to understand importance of listening with respect to development of writing, reading and speaking skills. Yes, listening is a very important tool, especially if you are an employee or an employer. वाई? क्यों? क्योंकि उधर भी सपोज यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, जब आप लोग इधर आए थे इंटरव्यू लेने, ठीक है, आपने अपने बारे में बताया था और जिन्होंने इंटरव्यू ली उसने आपके बारे में सुना, ठीक है, एंड इफ दे टेल यू अ सेट ऑफ ड्यूटीज, जैसे आपको आपके काम बताए गए, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो क्या हुआ? यू हैड टू लिसन टू इट एंड देन वर्क इफेक्टिवली, बिकॉज लिसनिंग इज एसोसिएटेड विद रीडिंग, बिकॉज यू हैव टू रीड आउट थिंग्स. कई बार आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती है, you have to write out things, ठीक है. तो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. जैसे आपका काम है, आपको लोगों के साथ हर रोज बात करनी है, कम्युनिकेट करना है. कैसे करोगे? अगर आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ठीक है. यू आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स, अगर आपको ही समझ नहीं है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू टेल, हाउ यू विल बी एबल टू डिलीवर मतलब कैसे आप स्टूडेंट्स को डिलीवर करोगे, राइट. तो उसके लिए लिसनिंग, और लिसनिंग के साथ एसोसिएट होती है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. No oral communication can be effective without proper listening in a part of receiver of the message. A tactful manager can positively handle the grapevine of information channel communication by empathetic listening. What is empathetic listening? Especially people who are handling अदर पीपल, जो आपका काम है या जो लोग स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, उनको बोला जाता है यू हैव टू बिकम अ वेरी एम्पैथेटिक लिसनर. व्हाट इज दैट? इमोशंस के साथ, मतलब उसकी फीलिंग्स को समझ के सुनना. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, बिकॉज यू हैव टू लिसन केयरफुली. अब सपोज आपके कोई स्टूडेंट्स है 4 दिन से आ नहीं रहे, सडनली वो अपीयर हो जाए और आपको बोले इतना इतना पोर्शन दोबारा कराओ, आपको उनकी प्रॉब्लम को बड़ी एम्पैथेटिकली सुन के उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा. आपके पास दिन में 200 लोग आते हैं, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, आपको सारी प्रॉब्लम को सुन के उस हिसाब से उनको मैनेज करके देना पड़ता है. इफ़ यू आर नॉट एम्पैथेटिक लिसनर, पीपल विल नॉट अप्रोच यू. पहली चीज़, पीपल विल स्टॉप अप्रोचिंग यू. दूसरी चीज़ कि यू विल लूज द क्रेडिट ऑफ अ गुड लिसनर एज वेल एज अ गुड स्पीकर. राइटर और रीडर तो नेचुरली, क्योंकि आप जब सुन ही नहीं रहे हो तो अब आप आगे से क्या कम्युनिकेट करोगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ टू-वे चैनल. इफ यू आर लिसनिंग देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक, क्योंकि जिसकी अब आप सुनोगे दोबारा आपने भी तो कुछ बोल के बताना है ना. सो यू हैव टू बिकम अ एम्पैथेटिक लिसनर. उसके अलावा पुअर लिसनिंग में डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. इट हैज बीन फाउंड दैट अथॉरिटीज ऑफ अ सब्जेक्ट जनरली पीपल रिटेन ओनली अबाउट 1/4 of what they hear after 2 days.
इन दैट वे लिसनिंग बिकम्स द वीकेस्ट लिंक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. यस, अगर आपने कोई बात सुनी है, व्हाट इज द, एक पहले एक वर्ड आया था ग्रेप वाइन. व्हाट इज ग्रेप वाइन? एक वर्ड आया था ग्रेप वाइन. हाँ जी, व्हाट इज ग्रेप वाइन ऑफ अ सब्जेक्ट और ग्रेप वाइन ऑफ अ मैटर? ग्रेप वाइन और क्रक्स मतलब शराब नहीं. ग्रेप वाइन और क्रक्स मीन्स किसी चीज का सार. जैसे सपोज करो आपके पास मैं कोई क्लास लगाने आ रही हूँ, पूरी चीज की जो समरी, पूरी चीज का जो सार है, दैट इज नोन एज ग्रेप वाइन और क्रक्स ऑफ द मैटर. हम कहते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर. कई बार कहते हैं ना काइंडली बी ऑन द पॉइंट. आप बोलते हो कि पॉइंट पे आइए, बताइए क्या 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 बात है, मैं उसी चीज को सॉल्व करूँ. पूरी कथा सुनने नहीं बैठते. ठीक है, सो दैट इज ग्रेप वाइन, क्रक्स ऑफ द मैटर. उसके अलावा कई बार होता है कि आपने जो कुछ सुना है ना, उसका 1/4 भाग ही आप 1/4 भाग ही आप रिटेन कर पाते हो इन योर मेमोरी. बिकॉज दिन में आप पता नहीं कितने कितने, जैसे आप लोग शॉपकीपर हो, दिन में आपके पास 500 लोग आ रहे हैं, एक एक की बात याद रहेगी नहीं. तो आपको 1/4 तुम्हारे पास रोज पता नहीं कितने लोग स्टूडेंट आते हैं, वो एक एक की बात याद रखना तो बहुत मुश्किल है. 1/4 ही आपको 2 दिन तक याद रहता है. ठीक है, अगर आपका उसके साथ इंटरेक्शन बार बार हो, ठीक है, सपोज करो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपके पास डेली आते हैं, उनकी बातें आफ्टर 2 to 3 days आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी. पर जिसने आपको साल में एक बार या महीने में एक बार आके आपको मिलना है, जैसे आप हो, आपके पास जो राशन लेने आया है या जो आपसे सामान लेने आया है, ठीक है, उसने महीने में एक बार आना है, उसको कितना याद रखोगे? मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, ओनली डेली इफ यू आर मैनेजिंग समबडी या डेली यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, आपको सब कुछ याद रहेगा. ठीक है, अ फ्यू बेसिक ऑब्जर्वेशंस अबाउट लिसनिंग विल क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड. इट इज आउट ऑफ सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट एंड एक्यूजिशन. बिल्कुल ये एक चीज होती है लिसनिंग. आपको अब मैं सपोज करो, हम मैं कह दूं ये जी आप आपस में लड़ी है, तेरे बारे में कुछ बोलना है, वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि ये बात कितनी सच है. इट इज आर्ट ऑफ लिसनिंग. डू यू रियली रिलाई ऑन फैक्ट, सुनी सुनाई बात, या यू गो एंड क्लैरिफाई द फैक्ट. ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स. सो यू नीड टू बी अ आर्ट ऑफ सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट. फैक्ट क्या है? स्टेटमेंट जो आपको बोली गई. स्टेटमेंट मैंने बोल दी कि ये तुम्हारे लिए बोल रही थी, लड़ रही थी, वो स्टेटमेंट बोली, बट यू हैव टू सी द फैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट. Are they like this? No, they are good people. They are not like this. ठीक है, so becoming a listener, it is good कि you have to be a good listener. सब कुछ सुनना जरूरी है, but you have to clarify a fact from the statement. कि statement क्या बोली गई है और उसमें fact क्या है, वो चीज़ reasoning करने की भी ये चीज़ आपको use करनी चाहिए. Next is listening involves major operations: hearing, सुनना, understanding, समझना, रिटेनिंग मतलब उस चीज को अंदर याद रखना, एंड रिकॉलिंग, फिर उसको रिपीट करना. मोस्टली आपको ये चीज रोज करनी पड़ती है, आपको ये चीज रोज करनी पड़ती है कि पहले आपने सुन ली है, समझ ली है, ठीक है, उसके बाद उसको रिटेन किया है और फिर उसको आपने बोला, रिकॉल किया है. नेक्स्ट इज लिसनिंग इज नॉट ओनली सिंपल एबिलिटी टू डिकोड इन्फॉर्मेशन, इट इज अ 2-way एक्सचेंज. ये जो मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, ठीक है ना, ये सिंपली ये डिकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली. इट इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन. जो कुछ आपने सुना है वो आपने रिपीट करना है, चाहे वो आइडियाज़ हों, थॉट्स हों, ठीक है, उसके अलावा इमोशंस हों, तो वो सब कुछ आपको आगे फिर उसके आगे बताना भी है. कई लोग हैं जैसे आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, तो उनके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी समथिंग एल्स. और जहाँ आप काम कर रहे हो, आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ आपकी कौन सी बॉन्डिंग होती है? सोशल बॉन्डिंग होती है, प्रोफेशनल बॉन्डिंग होती है, वहाँ बात कुछ और, इमोशन है. सो इन एवरीथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व. ठीक है, फैमिली में इमोशन कुछ और हो जाता है, सोशली जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, वी आर सोशली इन्वॉल्व विद ईच अदर, प्रोफेशनली वी आर इन्वॉल्व विद ईच अदर. ठीक है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग कुछ और होती है. सो फॉर ऑल दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिसनिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी एंड हियरिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी. यस, लिसनिंग जो है एक मेंटल एक्टिविटी और हियरिंग जो होती है वो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, सुन रहे हैं. पर लिसनिंग, लिसन इज केयरफुली. कई बार आपको कहते हैं ना मेरी ध्यान से बात सुनो, वो क्यों ऐसा कहते हैं? उनको पता है कि आपको सुनाई तो देता है, पता है घर में सबको कि आपके पूरे दोनों कान बराबर चल रहे हैं, सुनाई सब देता है. पर क्यों बोला जाता है कि ध्यान से सुनो? क्योंकि उस टाइम वो कह रहे आते हैं आपको लिसन, बिकॉज लिसनिंग इज कनेक्टेड टू
एंड हियरिंग तो सबके कान चल रहे हैं, हम में से हर एक का कान चालू है, पर हमें पता होता है हमने क्या सुनना है। कई बार कहते रही मैं तो इसकी बात इधर से सुन के इधर से निकाल देती हूँ, कहते हो ना, दैट मीन्स यू आर हियरिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग। ठीक है, मेरे ऐसा इंसान कहता है कि मैं तो बात सुन के यहाँ से सुन के यहीं से निकाल देती हूँ, तो यहाँ नहीं आने देती। ठीक है, so listening includes hearing. In hearing we get sound but we do not use mind. In listening we have to understand, retain and recall. ठीक है, इन हियरिंग तो आप हॉर्न सुन रहे हो, जब आप रोज आप आते हो ट्रैफिक में आपको 100-200 आवाजें सुनाई दे रही है, ठीक है, पर हियर वो आप हियर कर रहे हो, सुन रहे हो, पर लिसन क्या करोगे, सडनली आपका कोई नाम लेके बुलाए, वो आप एकदम ध्यान दोगे, आपका ध्यान उधर जाए। ठीक है, God has given us 2 ears and tongue. It indicates that listening is important than speaking. बात भी सही है कि भगवान ने हमें 2 कान दिए और जुबान एक दी, ठीक है, 2 नहीं दी, तो इसलिए क्या जरूरी है कि ये 2 चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और जुबान का जितना हो सके कम। The average listener who hears 10-minute presentation will hear, understand and retain only half what was said. Average listener होते हैं, अब आप भी जो आपने कल पढ़ा है उसमें से आई डोंट थिंक सो 1/2 भी याद होना है, क्योंकि दिन भर आपके पास 200 करोड़ और काम है। ओनली यू विल बी रिटेनिंग इट इन अ बेटर वे जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, सो मोस्टली क्या होता है कि हियरिंग में सिर्फ 10% आपको याद रहेगा, वो भी आई थिंक काफी दिनों बाद। 48 hours later the portion drops to another 25%. Part of reason of poor listening is ability in the educational system with emphasize that speaker is the expense of the listener. The system focus major attention on reading, writing and speaking, not on listening skills. मोस्टली क्या होता है, आपने स्कूल्स में भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कभी भी ये चैप्टर्स पहले नहीं थे। लिसनिंग स्किल, रीडिंग आपको सिखाई, राइटिंग आपको सिखाई, स्पीकिंग सिखाई, बट व्हाट अबाउट द लिसनिंग? यू ऑल आर ऑलमोस्ट +2 करने के बाद ही अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पार्ट लिए, तो +2 तक 10+2 तक लिखना भी आ गया था, पढ़ना भी आ गया था, बोलना भी आ गया था, पर ये चीज़ कभी नहीं सिखाई गई, सिर्फ टीचर्स जब आपका तभी होता था। ठीक है, द एवरेज लिसनर, okay, yet another study shows that 45% of total working hours are spent on listening, 30% on speaking and 16% on reading and 9% on writing. It's a fact. कम से कम आपके 45% ऑफ वर्किंग आवर्स तो सुनने में ही है, आप सारा दिन तो सुनते ही लोगों की। ठीक है, उसके अलावा 30% आप बोलते हो, 16% आप पढ़ते हो और 9% आप लिखते हो। मोस्टली इसी तरह से होता है। मेरा लिखना शायद 10% ही होएगा कि एक बार लिखती हूँ पूरा दिन समझाती हूँ, ठीक है, पर स्पीकिंग खैर सबसे ज़्यादा मैंने ही की। Yet another study shows that 45% of total working hours, okay, writing and speaking skills improve with practice. Yes, writing and speaking. Why we put more emphasis? आप स्टूडेंट्स को बार बार क्यों कहते हो कि पढ़ो? ठीक है, आपने एक चैप्टर आज पढ़ा दिया, आपने कंप्यूटर का कोई चैप्टर पढ़ाया, आप स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हो घर जाके पढ़ो, होमवर्क देते हो, क्यों देते हो? क्या जरूरत है उसकी? ताकि वो उस चीज को रिटेन करे। जो क्लास में पढ़ा बाद में तो 2 घंटे बाद ही भूल जाना है, क्योंकि इन्होंने उठ के कईयों ने अपने काम पे चले जाना है, बाकी ज्यादा अपने आप को कूल करने के लिए कैफे चले जाएंगे, बर्गर पिज्जा में टाइम स्पेंड हो गया, तो कब याद रहेगा? कई बार टीचर्स कहते हैं कि पढ़ के आओ, क्यों कहते हो? ताकि वो रिटेन रहे। दैट इज द मेन रीजन दैट एवरीबडी वांट्स दैट you should retain the information what is being told to you. Retain means you have to keep it inside your memory. उसके अलावा listening is a process of perpetual motion. It begins with one hear and observe what is being said, continues as one stores and correlates the information, and then begin again with other motion. Yes, what is being said, आपने सुन लिया, उसको retain किया, उसको कौन से इमोशन में लेके जाना है वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे आपका कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे आप सोशली, प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में बॉन्डेड हो, पर घर जाके आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर हर जगह आपने अपने अंदर, हर इंसान ने अपने माइंड में अंदर कंपार्टमेंट्स बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाए, किसके साथ क्या है, किसके साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, किन के साथ आपका सोशल है, कोई हो सकता है आपके फ्रेंड हो। ठीक है, सो वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आपके इमोशन स्टोर होते हैं, उसी हिसाब से आप सुनते हो। पेरेंट्स की कितनी सुननी है, टीचर्स की कितनी सुननी है, एम्प्लॉयर्स
की तो खैर सुननी है, उसके अलावा आपस में आपको लीक साथ हंसते बोलते हो कितनी सुननी है, कौन सी बात मजाक में लेके जानी है, कौन सी बात को सीरियस होना है. सो ऑल दिस इज कनेक्टेड विद योर हियरिंग एंड माइंड. For developing listening skills, little effort is being made by educators and trainers. In order to improve reading, writing, speaking, instructors continuously guide and help others. Rarely do we find such effort or listening. बिल्कुल सही बात है. Reading, writing, speaking पे ही +2 तक जोर हुआ है. But when did they approach towards your listening? That part is always missed out. So listening is the main thing which has to be done almost always. Recognition is being given to best speakers. Rarely we find a situation where best listeners are appreciated. Yes, आपने कहीं पे भी आप क्या करते हो, हम जी टॉक शो सुनने जा रहे हैं, हम किसी का बोलना सुनने जा रहे हैं. कभी ये हुआ कि हम किसी कोई लिसनर है जिसकी हमने देखना कि वो कितना अच्छा लिसन करता है. This subject, this part is always not recognized. But if you are a good listener, then only you can become a good speaker. And if you are a good speaker, you can become a good writer and reading, of course. Next is, what is presenting? What is presenting? पेश करना मैम. हाँ जी. ठीक है. From time to time we participate and speak in committee meetings, conference, seminar, classroom, group discussion, etc. In fact, public speaking and oral reporting is essential part of a student, teacher as well as a manager job. So presentation में क्या क्या होता है? सारा दिन आप स्टूडेंट्स के साथ होते हो. ये तो आप ही का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम्हारा भी है. सारा दिन पता नहीं कितने लोगों के सामने क्या क्या बताना होता है कि ये कोर्स में ये है वो है, ठीक है. सो प्रेजेंटेशन इज आर्ट जो आप क्लासरूम, सेमिनार, वर्कशॉप्स और आपने अपने जो भी कुछ गाइडेंस टूल्स होते हैं, आप लोग गाइड कर रहे हो, स्टूडेंट्स को बता रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है. उसके अलावा प्रेजेंटेशन ऑल्सो मीन्स प्रेजेंटिंग समथिंग बिफोर पीपल इन सम फॉर्मल ओकेजन. कोई फॉर्मल ओकेजन हो, आपने कोई ओकेजन हो, कोई सेमिनार, जैसे हमने यहाँ पे सेमिनार रखते, कुछ भी रखते, तो वहाँ पे कुछ प्रेजेंट करना, वो चीज़ होती है. Because the purpose of presentation is defined more precisely than public speech. Moreover, presentation is done before a select audience, whereas in public speech, audience is not selected. Presentation main purpose of presentation is to give information, to persuade the audience to act and create a goodwill. ठीक है, कि आपकी जो ऑडियंस है, प्रेजेंटेशंस अगर कहीं पे होती है, कहीं पे कोई आपकी क्लासरूम लगी है जिसमें कोई प्रेजेंटेशन चल रही हो, तो वहाँ पे ऑडियंस जो है वो कब कैच होती है? When you टेल द मटीरियल, या जो भी कुछ आपने उनको डिलीवर करना है, इट इज़ इन सच अ वे जो उनके लिए कैची हो, जिस चीज़ को वो रिलेट कर सके. कई बार एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ से, या एग्जाम्पल विद योर डेली वर्क, तभी आपको वो चीज़ कैची लगेगी. तो प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी डन इन सच अ वे. Now development presentation skill is an art where most of the training and learning requires greater focus and attention. Executives, non-executive instructor, trainer and administrators need to strengthen their skill with respect of presentation varied in target skills. Please, before coming to the class, your mobile phone has to be on silent mode. Sorry. From tomorrow it should not happen. So, आपके जो भी टारगेट ग्रुप्स होते हैं, कौन से होते हैं मोस्टली? आपके तो टारगेट ग्रुप कौन से हैं? स्टूडेंट ही हर रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, वही आपका टारगेट ग्रुप है. उसके अलावा नॉन एग्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, जैसे अगर कोई यहाँ से बाहर से कोई डेलीगेट आए, इंस्ट्रक्टर आपको बोलेंगे इनके साथ मीटिंग है, मीटिंग करनी है, ठीक है. उसके अलावा कोई ट्रेनर आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, जैसे आपके हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट और द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके साथ आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एवरी डे यू आर कम्युनिकेटिंग. कोई ना कोई जैसे प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं, हम ये हो गया, हमें ये कल ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है. तो यू आर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर इन्वॉल्व विद योर वर्क एथिक्स. उसके अलावा स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर्स, तो हर रोज जिन के साथ आप डील कर रहे हो, बोल तो रहे हो, साथ साथ यू हैव टू लिसन ऑल्सो. नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड एन ओरल प्रेजेंटेशन. व्हाट इज द नीड ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन? सबसे पहली चीज है प्रेजेंटिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट टॉपिक टू अदर्स इन अ क्लास. नेचुरली जैसे क्लास है, जैसे आपका ये टॉपिक है, इस चीज को बता रही हूँ मैं,
ठीक है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वट एवर इज टोल्ड टू यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड. उसके अलावा प्रेजेंटिंग अ न्यू बिजनेस प्लान, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी, आपने किसी बिजनेस की डीलिंग करनी हो, बिजनेस प्लान डिस्कस करना हो, यू आर विजिटिंग अ टाउन, अ ग्रुप, और आप कहीं बाहर मिलने को बुलाते हो. घरों में कोई बिजनेस मीटिंग नहीं रखता, ना ही दुकान पे आप कहोगे इस जगह पे आ रहा है, इस कैफे में आ जा, वी विल डिस्कस बिजनेस प्लान. तो डिस्कशन में क्या होगा, क्या होगा, कितनी प्रोसेस होएगी, टू वे प्रोसेस. कौन सी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. खुद भी आपने बोलना है और उसकी बात सुननी है, वो भी आपकी बात सुनेगा और बोलेगा. इट विल बी अ टू वे प्रोसेस. ठीक है. उसके अलावा लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस. नेचुरली न्यू प्रोडक्ट अगर कोई मार्केट में लॉन्च होता है, naptol.com, पता नहीं कितने कितने मीशो पे हर वक्त वो न्यू प्रोडक्ट होता है. कई बार नापतोल पे वो लगे रहते हैं, पूरा दिन वो बोलते रहते हैं. कभी आप उनका चैनल देखो, ठीक है, तो पूरा दिन वो प्रेजेंटेशन ही करते, बोल रहे होते हैं कि ये बेडशीट्स ले लो, ये ले लो, नए सूट आए, ये आया, वो आया. तो प्रेजेंटिंग अ न्यू प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस, दे आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग अ सर्विस. उसके अलावा मेकिंग अ सेल्स प्रपोजल. नेचुरली सेल्स प्रपोजल, जो लोग सेल्स में, उनको पता ही है, ठीक है, कितने % ऑफ रखा होता है. तो शॉप्स के बाहर 25% ऑफ, दिवाली बोनांजा, दिवाली धमाका, ऑल दैट. ठीक है. इसके साथ ये चीज़ फ्री है, किसी ने गिफ्ट कूपन रखे होते हैं. ठीक है. उसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस या सेमिनार. कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें पार्टिसिपेट. सपोज करो कल को कंप्यूटर वाले कोई सेमिनार या प्रेजेंटेशन रखते हैं, ठीक है, शी इज़ हेडिंग अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शी विल बी इन्वाइटिंग द डेलीगेट्स. से इन्वाइट करेंगे डेलीगेट्स को, क्या हो, इतने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएंगे ये कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट इस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, सेमिनार में कर रहे हैं. ये फिर स्टूडेंट्स को मैसेज भेजेंगे, कॉल करके बोलेंगे आपका सेमिनार है, वर्कशॉप है, इतने बजे पहुंचो. सो ये सब उसमें क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन. शी विल बी टू वे कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स. उनको बताएंगे, उनके सुनेंगे, फिर नोट करेंगे. ठीक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे, दिस एंड दिस. देन शी विल बी डूइंग द राइटिंग वर्क कि चलो मैं लिख लूँ कि इस बच्चे ने बोला मैं नहीं आ सकता, तो बाद में शी विल बी गिविंग इट टू हर कि आपके पास आज इतने बच्चे आ रहे हैं, ये नहीं आना. और उस टाइम क्या हो रहा होगा, टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू. दे विल बी एक्सचेंजिंग दैट मैसेज बिटवीन ईच अदर. देन शी विल बी टेलिंग हर कि आप इतने हैं तो हमने इतनी चेयर्स लगानी है, और हम फिर वहाँ पे नीचे इतनी चेयर्स अरेंज करके देंगे फॉर देयर सेमिनार या वर्कशॉप. सो इट विल बी अ कम्युनिकेशन प्रोसेस चैनल between 1, 2, 3 and she'll be dealing with almost 100 students. So 4 communication channel बन गए. ठीक है. उसके अलावा explaining a plan strategy to a group. उसके बाद explanation part आएगा. कोई plan या strategy जो group आया, उनको plan, strategy या information whatever you are sharing with that group. Next is, across most of the situations, oral presentation can be straightforward, but it also be complex, involving elaborate complex, includes various media reports, several speakers. कई बार होता है several speakers, एक पर्सन नहीं है, 4-5 स्पीकर आए हुए हैं. कई बार आपने देखा है बड़े बड़े रैलीज, एक नेता नहीं 10-10 नेता भाषण दे रहे होते हैं. ठीक है. वेरियस स्पीकर्स, हर एक पर्सन अपनी बात, और जो बैठ के सुन रहे हैं वो ऑडियंस है. अब वो सिर्फ हियर कर रही है या लिसन कर रही है, वो उन पर डिपेंड है. मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशंस यू हैव सीन सो फार इज टू प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च टू अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इन फेयरली एकेडमिक स्टाइल. ये जो हम लोग हर रोज कर रहे हैं, एकेडमिक स्टाइल. एकेडमिक क्या होता है, हर रोज कर रहे हो, एकेडमिकली आप पढ़ा रहे हो. ठीक है. दिस इज एकेडमिक्स सिलेबस, योर स्टडी. ठीक है. इन एकेडमिक स्टाइल व्हाट यू आर डूइंग, चाहे आप रिसर्च करवा रहे हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो. ठीक है. इन अ एकेडमिक स्टाइल, एकेडमिक स्टाइल इज व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे स्कूल की हो, दैट इज ऑल एकेडमिक्स फ्रॉम योर नर्सरी टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन या वट एवर PhD लेवल. टू स्पीक टू पब्लिक अबाउट कॉर्पोरेट इशूज एंड हैजार्ड्स. कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो होती हैं, हैव यू एवर अटेंडेड अ कॉर्पोरेट मीटिंग? या ना तो बोलो. कॉर्पोरेट मीटिंग अटेंड करी है आपने? सो यू हैव सीन सो मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन अ कॉर्पोरेट मीटिंग. ऑलमोस्ट ऐसे करके लंबा सा टेबल लगा होता है. द मोस्ट फ्रंट इज द मेन हेड एंड देन द एग्जीक्यूटिव, देन सेल्स एग्जीक्यूटिव. पूरी वो टीम होती है एंड दे आर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स, एंड देन वन पर्सन विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द बोर्ड एंड टेलिंग दैट दिस इज दिस and you have to do this. So sales in
this part has risen to so much percentage and sale in this part has fallen, then people will be coming in, becoming their strategies, अपनी अपनी बताएंगे कि क्यों this part is weaker, why this thing is happening, why यहाँ पे sale कम है, कैसे हम बढ़ाएं, what has to be done. Then you will be coming with various strategies or proposal, right? And one person will be writing the minutes of the meeting. ये होता है ना? So to sell products to services to clients. अब वो सब जो कुछ कर रहे हैं सेल्स, उनका मकसद क्या है? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना. और उसके अलावा चाहे आप एक सोप कंपनी ले लो, लक्स साबुन ले लो या कोई भी, वो मार्केट में जब लॉन्च करते हो उससे पहले पता नहीं कितनी मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है जिसने आपको मार्केट में लॉन्च करना है. आप मोस्टली जब टीवी पे मीडिया पे देखते हो, आप उस एक्टर को देख के वो चीज़ हम ले लेते हैं, ये वो भी यूज़ कर रहा है, उसने की नहीं की वो हम क्लैरिफाई करने नहीं जा रहे हैं. बट we only see the presentation part and then we decide to purchase that thing. जो इवन आप कपड़े सिलेक्ट करते हो, चाहे मैंने लिए हो, आपने, हम लोग देखते हो वाओ कितना अच्छा है, हम तब लेते हैं. उसकी क्या क्वालिटी वगैरह वो हमें बाद में चेक करनी होती है, पहले हम उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं. They rarely address complex group presentation and presentations in a class or a small group. While it is important to learn speaking skills from presentation, talk given to small groups are probably more important in your working and learning career. In this, thus the section focus on informal and in-house presentations. An informal talk is related to complex and highly formal speaking with persuasive core and expands contracts according to the scope of the task. क्या होती है scope of the task? कोई टास्क आपको मिली है, उसको आपने किस तरह से करना है. उसके अलावा व्हाट इज इन हाउस प्रेजेंटेशंस, व्हाट इज आउटबाउंड एंड व्हाट इज इनबाउंड. मैम एक चीज़ ये उसके दायरे में रह के मतलब मैंने ले लिया, और एक हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो तो है. एक होता है इन हाउस प्रेजेंटेशन इज लाइक, अगर जैसे यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट पर प्रेजेंटेशन दे, ठीक है, आउटसोर्स होगा अगर हम किसी और सेंटर में जाके करना, उसके लिए हम पता नहीं कितनी तैयारी करेंगे. ठीक है. Now learning is art, learning the art of non-verbal communication. What is non-verbal communication? बहुत easy होता है, हर रोज कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो. नॉन वर्बल हर रोज कर रहे होते हैं. जैसे लोग पौड़ियों में खड़े हैं, नीचे तो खड़ा है, दिस इज नॉन वर्बल. ठीक है, ठीक है. फिर हम, हाँ, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये होता है. उसके अलावा साइन बोर्ड्स, कई बार आप जा रहे हो, रास्ते में साइन बोर्ड नहीं लगे होते कि क्या है, ड्राइविंग बिलो कितने किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज नॉन वर्बल, सरकार ने लगाए नहीं होते. हाँ, स्पीड लिमिट, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके अलावा हर रोज एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपको ट्रैफिक पुलिस दे रही है. सब लोग मोटरसाइकिल बाइक्स चलाते हो, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, वो क्या है? कोई आके तो नहीं बोलता ना रुक जाओ, स्लो करो, चलो, कोई नहीं बोलता. वो रेड, येलो और ग्रीन, दैट इज नॉन वर्बल. साइन पोस्ट, ठेकों के बाहर लिखा होता है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, फिर भी लोगों की भीड़ लगी होती है. उसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चिप्स और कई कई पैकेट्स के पीछे लिखा होता है कि भाई नहीं अच्छा खाने के लिए, फिर भी हम लोग खाते हैं. इट कंटेन्स कैफीन, कोक की बोतल पे लिखा होता है, फिर भी मैं हर रोज पीती हूँ. ठीक है. चॉकलेट्स पे लिखा होता है कि नॉट गुड फॉर हेल्थ, कई कई चॉकलेट्स पे लिखा होता है, पर फिर भी जी लेनी है. सो ऑल दिस इज, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके अलावा इट इज लेस कॉन्शियस. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज, सबसे पहले इंस्ट्रक्टिव इन नेचर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव इन नेचर, दैट इज इट इंडिकेट्स एटीट्यूड, इंस्टिंक्ट्स, फीलिंग ऑफ अ स्पीकर. ठीक है, वो आपको, खैर हम ट्रैफिक पुलिस को इसलिए, वो तो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए. ठीक है. उसके अलावा इट इज़ लेस कॉन्शियस. वर्ड्स आर स्पोकन आफ्टर ड्यू थिंकिंग एंड विद कॉन्शियस एफर्ट. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वी हैव टू मेक मोर एंड मोर less conscious effort in this choice of words. The non-verbal part communication on the other hand is less deliberate and mostly unconsciously expressed. उसमें तो सिर्फ कोई ना कोई साइन है, या आप बुला रहे हैं, या कुछ छोटी बात हो गई,
नॉन वर्बल में। वर्बल में कि पूरा का पूरा उसने आपको बोल के बताया, नॉन वर्बल में कोई साइन पोस्ट है, कोई हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी, ठीक है ना, स्पीक स्लोली, और कई स्कूल्स के बाहर होता है कि भाई स्कूल एरिया वॉक सॉफ्टली या कुछ ऐसे, ठीक है। It is subtle in nature. Spoken and written words are quite obvious and easy to see, listen and understand, whereas non-verbal communication is very subtle. We need the skill to understand and express. उसमें सिर्फ हमें स्किल चाहिए, उस चीज़ को समझें और उस चीज़ के हिसाब से अपने आप का एक्शन करें, ठीक है। क्योंकि जो हमने बोल दिया, स्पीकिंग होगी या लिसनिंग होगी, वो तो सामने वाले ने बोल दिया, ठीक है ना। पर ये जो नॉन वर्बल है वो आपको खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना है। It is complementary to verbal communication. Non-verbal communication does not stand alone on its own and neither does completely substitute communication with words. It is complementary verbal communication and makes more effective. As an example, when we watch a movie, the dialogue are made more impressive by the way they are delivered, with the modulations of voice and other gestures and signals. ठीक है, जब हम कोई मूवी देख रहे हैं, डायलॉग वो हम सुन रहे हैं सब कुछ, पर जो उसके इलादा होता है नॉन वर्बल, उसके जेस्चर्स मतलब क्या होता है, भाव, एक्सप्रेशंस, ठीक है। जेस्चर्स मतलब एक्सप्रेशन, उसके अलावा सिग्नल्स, मूवी में भी कोई कई तरह के साइन लैंग्वेज यूज की जाती है, सिग्नल यूज किए, वो आपकी खुद की समझ पर है, ठीक है। जब वो हंस रहे हैं, अगर वो सिर्फ हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, वो आपके ऊपर समझ के ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरह से समझ रहे हो। It forms the larger part of overall communication activity. On scientific analysis, it has been found that different aspects of communication account for percentages decided below. ये देखो 55% if non-verbal communication में क्या होता है, facial expression, मुंह बनाया हुआ, आज तेरा मुंह क्यों बना हुआ है, बोल देते ना, कोई नहीं बोला तेरा मुंह क्यों बना हुआ है, ठीक है ना। उसने कुछ नहीं आपको बोला, फिर भी वो आप समझे हो उसके फेस एक्सप्रेशन से। उसके अलावा बॉडी पोजीशन, ठीक है, कोई अकड़ के खड़ा रहे, बोले ना आपसे क्यों खड़ा पड़ा है, ठीक है। जेस्चर्स उसके आप बोलने का हाव भाव से आपको पता चल जाता है कि हाउ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। देन वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड, 7% ऑफ वर्ड्स, 7%, 38% टोन ऑफ वॉइस एंड इन्फ्लेक्शन। टोन ऑफ वॉइस, उस पर्सन की टोन कैसी है, आपके साथ बात करते हुए किस तरह से वो बात कर रहा है, वो आप जज कर जाते हैं, ठीक है, समझ आई।